है बेटे। So by the grace of Almighty, we got another chance to improve our knowledge, to share our educational experiences. And presently, what I see, some boy is distributing assignment. Please distribute it, bete, at the earliest. Everybody should be ready with your notebook and pen. Fine. So I am still waiting one section, daffodil. Hasn't joined so far. Rose has joined, lotus has joined. So we will proceed. But then lots of time has been given to them. They should have come by this time. Sunflower, sir. PPT यहाँ से ना. Look, bete, let's start here. So, in case screen is clearly visible to you, please raise your hand. Please raise your hand, नहीं तो फिर बाद में पता लगता है. Very nice. शाबाश. Let's proceed further, बच्चे. This topic which we are going to discuss, it comes under the section physics. साइंस का कौन सा सेक्शन? फिजिक्स, जो हम आज पढ़ेंगे. फैकल्टी का नाम इसलिए याद होना चाहिए आपको, डीवी सर, ताकि कल आपको कोई डाउट हो तो आप हमें भेज सको, बता सको कि इस सर ने पढ़ाया था और ये डाउट रह गया. ठीक है, तो शाबाश. ओके, सो बेटे, अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस देखते हैं क्या है. लुक एट दीज photographs. Just see what is happening here. Just see. Some girl is helping her mother, and before putting the wet clothes on the wire, she is what? Jerking out the tiny water droplets. Now question arises, why these water tiny droplets gets away from the cloth when she gives the jerk to the cloth? So this is our one experience. I will soon tell you how is it all possible by the concept of science. एक दो फोटोग्राफ्स और देखते हैं हम, फिर मैं इस पे वापिस आऊंगा बेटे. ये look here the person is wrenching the cloth, right? कपड़ा निचोड़ रहा है, and you see on the left side he is wrenching the cloth with lesser force, and you can see from the facial expression. Whereas on the other side, the same guy is putting his all energy to wrench the heavy clothes, right? So what things we learn from these experience in terms of science concepts, वो भी हम थोड़ी देर में सीखेंगे. और देखें एक दो photographs. शाबाश. Look here, the child is first wrenching the clothes and then hitting the cloth again and again on the hard rock stone floor surface in order to clean the cloth. So how is it possible? While rinsing the cloth, after dipping it into the detergent liquid and then hitting it again and again against the stone, what happens behind, as per science, that cloth gets clean, all dust and dirt particles get away. Next, another look here. The child is enjoying the boating, and he is pedaling the down backwards, and the boat is moving forward. ना किश्ती चला रहा है, चप्पू को बैकवर्ड कर रहा है, एंड खुद बोट आगे जा रहा है. ऐसी क्या बात है साइंस के मुताबिक, वो हम आज सारी सीखने लगे. फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको ये क्या हो रहा है, ये रेड एरो का क्या मीनिंग है, ब्लू की क्या मीनिंग है. शाबाश.
और देखो ये डिफेंस से लिंक करके दिखाऊंगा आपको, आर्मी के बारे में, नहीं कैसे हमारे सोल्जर्स फाइट लड़ते हैं, ये मैं आपको जस्ट ग्लिम्प्स दे रहा हूँ, ताकि आज आपका लेक्चर बहुत बढ़िया ध्यान से सुने। फिर हम कुछ मोशन से लिंक्ड ग्राफ भी करेंगे, ठीक है? तो उन मोशंस के लिंक्ड ग्राफ को मैं आपको बताऊंगा। चलो, लेट्स लर्न द थिंग्स attentively. Go back to the first photograph. Yeah. So बच्चे, every photograph is linked with the other. You should be very, very, very attentive. Okay? देखो बच्चे, ये जो गर्ल है, इस मैं हिंदी इंग्लिश में मिक्स करूंगा, डोंट वरी। इसके पास जो गीला कपड़ा है उसमें काफी सारा वाटर ऑलरेडी है, राइट? जैसे ही वो जर्क देती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स कपड़े से अलग हो जाती हैं और कपड़ा सूखने में जल्दी सूख जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब वो जर्क देती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर ही क्यों नहीं रह जाती, बाहर क्यों आ जाती है, राइट? तो उसके लिए हमें साइंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा बेटे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है, लेट मी राइट, इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। ये इनर्शिया वर्ड इंग्लिश के वर्ड इनर्ट से बनाया गया। इनर्ट, इनर्ट के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है इनर्ट का, जो चीज जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, जो चीज जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। और दूसरी बात क्या है बेटा? वेट ए मिनट, फोटो श्रिंक हो गया हमारा। हाँ, तो दूसरी बात क्या है? इनर्ट का मतलब होता है लेजी, लेजी। आप अपना मेमोरी टूल बना सकते हो यहाँ पर। सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव, वी हैव लर्नड अ न्यू वर्ड इनर्शिया which is taken from the English word inert। और इनर्ट का मीनिंग आपको टीचर ने अभी बताया। तो फिर इनर्शिया क्या हुआ? ये किसी प्रॉपर्टी का, वो किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को कायम रखना चाहती है। यानी अगर ये बॉडी लुक हियर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगी, और अगर ये ऑलरेडी मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा ये क्यों कर पाती है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और अनदर थिंग, ये अपनी स्टेट को, मोशन वाली या रेस्ट वाली स्टेट को कब तक कायम रखने में कामयाब हो जाती है? तब तक, तब तक जब तक के एक्सटर्नल फोर्स इसको लगाने पर मजबूर ना कर दे बॉडी को कि वो अपनी रेस्ट स्टेट को मोशन में मोशन में आने में मजबूर हो जाए बॉडी। unless and until some sufficient external force in appropriate direction makes the body helpless to change its state। जब तक बॉडी के ऊपर बाहर से लगा हुआ बाहरी फोर्स पर्याप्त मात्रा में और सही दिशा में बॉडी को मजबूर ना कर दे कि वो अपनी रेस्ट स्टेट से मोशन में आ जाए, या ऑलरेडी मोशन में है तो रोक ही ना जा सके, तब तक ये बॉडी अपनी स्टेट को इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से कायम रखने की पूरी 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 कोशिश करती है, राइट? सो अब मैं इसको इंग्लिश में बोल के दिखाऊं सिंगल सेंटेंस में। लिसन, inertia is that property of a body because of which body, बेटे इधर देखो, ये बच्चा जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है असाइनमेंट, आप उसकी तरफ ना देखो। आप तो उसको ऐसे देखने लग जाते हो जैसे आपने असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना हो उससे। ऐसे नहीं बेटे, आप अटेंटिव लो, मेरी तरफ रहो ना। वो बच्चा सीट ढूंढ रहा है, पता नहीं, वो वैसे तो वो बच्चा खुद ही इल मैनर्ड है, चलती क्लास में घूमी जा रहा है, आप फिर उसको देख रहे हो।
So once again, inertia is that property of the body because of which a body tries to retain its state unless and until the external sufficient force in proper direction acting on the body makes the body to change its state. राइट जैसे अब ये समझ लो, ये एक गोदरेज का अलमीरा है, मान लीजिए हैं। अब इस गोदरेज के अलमीरा को वो कोई छोटा बच्चा पुश करता है, तो पहले भी ये रेस्ट पर थी और बच्चे के जोर लगाने पर भी ये रेस्ट में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा। अब इसी अलमीरा को उस बच्चे के पापा पुश करते हैं, तो आपको पता है कि मैन में तो कहीं ज्यादा फोर्स होता है बच्चे के मुकाबले। वो इस गोदरेज की अलमीरा को मूव करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में, इधर देखो, इधर सभी बच्चे हैं, इधर मेरी तरफ, दोनों ही केसेस में ये अलमीरा अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करती है। इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। और दूसरी तरफ देखो, मेरे पास मान लीजिए ये मर्सिडीज कार आ रही है, 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 और हम इसको रोकना चाहते हैं, राइट। पर फिर भी ये अपने मोशन को कायम रखेगी कब तक? जब तक सामने कोई सफिशिएंट फोर्स आकर इसको रोक ना दे या एफिशिएंट लेवल की ब्रेक्स ना लग जाएं, तब तक ये अपने मोशन को, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अपनी मोशन स्टेट को कायम रखेगी। तो ये जो सारी चीज मैंने आपको बताई, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था न्यूटन। तो न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, और उसी फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू मोशन। आप इसको शॉर्टेस्ट चीज में कैसे याद करोगे? शॉर्टेस्ट, सर कोई मेमोरी टूल दे दो, छोटी सी बात में याद हो जाए। वो सुनो, मान लीजिए इस बॉडी का के अंदर एक जिद है, इसके अंदर एक जिद है, मैं रेस्ट पे हूं, रेस्ट में रहने की कोशिश करूंगी। और एक बॉडी ये है, वो कहती है मैं मोशन में हूं, मोशन में रहने की कोशिश करूंगी। तो दोनों की एक जिद है, वो जिद वाला जो गुण है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन क्या ये बॉडीज अपने इस गुण को हमेशा के लिए कायम रख पाती हैं? नो। कोशिश करती हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम रखने के लिए, इस प्रॉपर्टी का फायदा लेने के लिए, पर सरेंडर कर जाती हैं उस वक्त जब एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट लेवल का बॉडी पे लगता है और बॉडी को उसकी स्टेट चेंज करने में मजबूर कर देता है, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में। अब जो वो एक्सटर्नल फोर्स लगना है इस बॉडी के ऊपर, जो इसकी स्टेट को चेंज कर देता है, उसमें दो गुण होने चाहिए। पहली बात, वो लगने वाला फोर्स एक कम से कम सर्टन लेवल का होना चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, सर्टन मिनिमम सफिशिएंट फोर्स। दूसरी बात, वो फोर्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगना होना चाहिए। अब एक बच्चे को मैंने बोला, मान लो ये रेस्टेड बॉडी है, मैंने इसको फोर्स लगाया 20 न्यूटन का और ये चल पड़ा। फिर मैंने उस बच्चे को पूछा कि अगर इसी बॉडी को मैं 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 30, पहले कितने से चला था? 20 न्यूटन से। अब टीचर कौन सा लगाने लगा है? 30 न्यूटन, 10 न्यूटन ज्यादा। और टीचर बोलेगा अगर मैं 30 न्यूटन यहां लगाऊं बॉडी पे तो क्या ये चलेगी? तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देते हैं यस सर, ये तो 20 न्यूटन से चल पड़ी थी, 30 न्यूटन से क्यों नहीं चलेगी? जबकि ये आंसर गलत है। क्यों? मान लीजिए मैंने 30 न्यूटन लगाया, लेकिन ऐसे लगा दिया। अब ऐसे लगाने से तो ये कार चलेगी नहीं ना, पुश नहीं होगी। ऐसे लगाता 30 न्यूटन तो जरूर चलती। मैंने डायरेक्शन तो आपको बताई नहीं, मैंने बोला फर्स्ट केस 20 न्यूटन फोर्स लगाने से यह कार चलती है। क्वेश्चन, 30 न्यूटन लगाने से चलेगी? मैक्सिमम बच्चे कहते हैं हाँ चलेगी। नो, जरूरी नहीं है, उस फोर्स की डायरेक्शन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मान लीजिए 30 न्यूटन ऐसे लगता,
फिर तो ना चलती, हाँ ऐसे लगता जरूर चलती, राइट। इसलिए हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट लेवल का होना चाहिए, और ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तभी बॉडी की स्टेट चेंज करी जा सकती है। सर अब सारी बात को कम से कम शब्दों में बताओ, समझ तो हमें आ गया। सुनो, इनर्शिया, धीरे धीरे बोल रहा हूं, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी because of which body tries its best to retain its state। स्टेट की ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ब्रैकेट क्लोजेस। बाद में क्या लिखना है? अनलेस एंड अनटिल some external force of sufficient level in appropriate direction applied on the body makes the body helpless to change its state। बॉडी को मजबूर ना कर दे बाहरी फोर्स, ये वो रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए, और लगने वाला बाहरी फोर्स सर्टन मिनिमम लेवल से या तो बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, और ऊपर से बिल्कुल सही दिशा में लगा हुआ होना चाहिए। जिन बच्चों को ये बात समझ आई जो अभी बताई मैंने, रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। जिनको अभी अभी बात बताई वो समझ आई, वेरी गुड। अगर आपको ये समझ आ गई तो ये भी समझ आएगा। देखो, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लॉथ है ना, इसको झटकने से पहले, ये कपड़े को झटकने से पहले, ये वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लॉथ दोनों सिंगल यूनिट बनी हुई थी, सिंगल यूनिट, क्योंकि दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे। तो अब ये गर्ल क्या करती है कि वो जो कपड़ा रेस्ट पर है, इसके हाथ में पकड़ा हुआ रेस्ट पर है, वो कपड़ा और पानी की बूंदें ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये गर्ल बाहर से सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको जर्क देती है, तो कपड़ा तो उसके हाथ की ग्रिप में है, वो तो मोशन में आके भी उसके हाथ में पड़ा रहता है, लेकिन ये जो बूंदे हैं, ये पानी की बूंदें अभी भी रेस्ट पे रहने की कोशिश करती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? ड्यू टू अनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी की वजह से। तो बूंदे तो पानी रेस्ट में रहने की कोशिश करती हैं अनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जबकि कपड़ा जिसके अंदर वो समाई हुई थी वो मोशन में आ गया। तो दोनों चीजों में मिसमैचिंग होगी, इस मिसमैचिंग की वजह से पानी की बूंदों को कपड़े से अलग होना पड़ता है। तो मिनिमम शब्दों में आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, when the girl gives the jerk to the wet cloth, then we notice that the tiny water droplets still try to remain in the rest state due to property of inertia of rest। ये साइंस के वर्ड बीच में आने चाहिए आंसर के, तभी मार्क्स मिलेंगे। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बट cloth as a whole comes into motion because of the jerk given by the girl, so therefore there occurs the mismatching between water droplets and the cloth comes into motion, but water droplets still try to remain at rest due to inertia of rest property, that's why they gets detached, और पानी की बूंदें कपड़े से अलग हो जाती है। जिन बच्चों को लगता है कि सर अब हम, अगर ये पेपर में आ जाए क्वेश्चन, हम इसका आंसर लिख देंगे, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड जिनको लगता है कि अब हम इसका आंसर लिख देंगे। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस रिस्पॉन्स। और आपको मैं सुन के बड़ा अच्छा लगेगा आपको अपने स्कूल के बारे में, कि सनफ्लावर, लोटस और रोज, तीनों सेक्शंस में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसका हाथ नहीं खड़ा था। तो अपने बच्चों को बस ध्यान से बताना होता है, बच्चों के पास ब्रेन बहुत अच्छा होता है पहले ही। शाबाश। अगली फोटो पे कुछ लर्न करें बेटे, अब कुछ अगली फोटो पे नई चीज लर्न करते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई बच्चा आपसे पूछ ले इनर्शिया की टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स इनर्शिया की, आप बोलोगे 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
कोई बच्चा बोले सर ये तीसरा क्या बोल दिया आपने, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब, उसका भी मीनिंग समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई ये बॉडी है, अगर ये पर्टिकुलर दिशा में जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज ही नहीं कर रही, कब तक, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा और इसकी दिशा ना चेंज कर दी हो। So a body at its own, due to property of inertia of direction, tries to retain its same direction of motion unless and until it is compelled to change its direction of motion by the external force। जब तक कि इस चलते हुए, जैसे आप समझ लो एरो में से अपना बो में से एरो निकला, बो में से कमान में से तीर निकला, उसी दिशा में जा रहा जा रहा जा रहा, जा ही जा रहा है, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, वो लगातार जा ही जा रहा है, ठीक है। तो इस कैसे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर मारा था, वो कहाँ जाके लगा था, औरंगजेब के तख्त पे लगा था जाके, और ने बोला ये कौन आ गया भाई, मेरे तख्त तक भी तीर मार दिया। तो वो क्या था, और उनके तीर में ऐसा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था कि वही गया डायरेक्ट, राइट। इसको याद रखना है आपने, हिस्टोरिकल, ये जो हमारे गुरुओं की बात है उससे आपको याद रहेगा क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिन बच्चों को तीनों समझ आ गए हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी नाइस, गुड रेस्पॉन्स, थैंक यू। मैं बीच बीच में आपके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, बीच बीच में मैं आपको बुलाऊंगा भी पूछने के लिए। आगे चलते हैं बेटे। नाउ यू सी, जस्ट सी व्हाट हैपेंस हियर। तो ये लड़का जोर लगा रहा है, इसमें से ये कंफर्टेबली जोर लगा रहा है, गीले कपड़े को दो चार बूंदे गिर रही हैं और बहुत जोर लगा रहा है, काफी पानी गिर रहा है। इससे हमने क्या सीखना है, सुनो बेटे, ये जो ऑब्जर्वेशन है इससे हम साइंस की क्या चीज सीखेंगे। लो, साइड पे मैंने जगह छोड़ रखी है अपने बच्चों के लिए, अब मैं अपने बच्चों को साइंस की नजर से समझाऊंगा। बेटे ये वर्ड है एक फोर्स, इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, और इसकी डायरेक्शन भी जरूर होती है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है तो इंडिकेशन के लिए इसके ऊपर एरो लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं फोर्स ऑफ 20 न्यूटन टुवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो जो 20 न्यूटन है वो इसकी मैग्नीट्यूड है, और जो टीचर कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड वो इसकी डायरेक्शन है। यानी फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजों के लिए यस। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दोनों चीजें हों, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, जैसे मैं बोलूं 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स ईस्ट बोल रहा है टीचर, दैट इज डायरेक्शन। जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास दोनों गुण होते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग होता है जिसको हम मेजर कर सके, एनीथिंग विच इज मेजरेबल, जिसको मापा जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो टीचर ये कहना चाहता है कि फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। सर और भी होती हैं वेक्टर, बिल्कुल, वेट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वो वेक्टर्स कही जाएंगी। एक चीज और नोट करो, टीचर बीच बीच में बोलता है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो न्यूटन वर्ड बोलता है टीचर, क्यों बोलता है, क्योंकि इस फोर्स को मापने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, और ये होती है न्यूटन यूनिट का सिंबल है।
न्यूटन, न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एक ऐसा यूनिट फोर्स का जो इंटरनेशनल लेवल पे 200 कंट्रीज को मानना ही पड़ता है कि जब भी हम फोर्स को मापेंगे न्यूटन यूनिट में मापेंगे। मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर वेट वेट वेट, न्यूटन तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था? मैंने कहा बेटे हाँ, यस, हाँ, उसी साइंटिस्ट के नाम को सदियों तक याद रखा जाए, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की यूनिट ही न्यूटन बना दी। सर फिर स्पेलिंग्स में क्या फर्क है? कुछ भी स्पेलिंग में फर्क नहीं है। जब साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो न्यूटन का कैपिटल एन बड़ा लिखना है कैपिटल लेटर्स में, और जब यूनिट का नाम लिखना है तो न्यूटन के स्पेलिंग में एन छोटा होना चाहिए, बस इतना ही फर्क है। राइट बेटे? सो न्यूटन इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स इनटू विच फोर्स इज मेजर्ड। जैसे दूध को लीटर्स में मापा जाता है, राइट, इसी तरह से किसी और चीज को किलोग्राम में मापा जाता है, ऐसे ही फोर्स को मापने के लिए न्यूटन यूनिट होता है। अब एक बच्चे का सवाल पैदा होता है, सवाल करता है मेरे से, सर बेसिकली ये फोर्स होता क्या है? व्हाट? आपने तो हमें ये बता दिया इसको किस में मापते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन ये फोर्स करता क्या है, होता क्या है सर ये? तो ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुने। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना, फोर्स एक ऐसा, या कार्यकर्ता कह सकते हो, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो, ध्यान से सुनना, जो किसी रेस्टेड बॉडी को मोशन में ला सकता है या लाने की कोशिश करता है। सिर्फ दोनों बोल रहे हैं, यस दोनों बोल रहे हैं। अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो मोशन में ले आएगा, अगर कम फोर्स हुआ तो मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, टेंड्स टू मूव द बॉडी। सर अच्छा समझ आ गया सर। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है या रोक पाता है असली में, वो भी फोर्स का काम है। सर और भी कोई काम है? बिल्कुल, तीसरा काम मैं बताता हूं। ये देखो बेटे, मेरे पास एक कोई बॉडी है, मैं इसके ऊपर, इसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के, इसकी ये ऐसे फोर्स लगा के इसकी शेप चेंज कर दिया। तो फोर्स एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। सर कोशिश भी आप साथ में कह रहे हो, बिल्कुल, वो कैसे, वो भी बताता हूं। मान लीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास हार्ड कांच की शीशी हो, है तो प्लास्टिक की, मान लो अब कांच की है, मैं इसको जोर लगा रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, उसकी शेप वही रहती है। तो इसका मतलब फोर्स इसके ऊपर इसकी शेप चेंज करने की कोशिश तो कर रहा है पर कामयाब नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे? फोर्स टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको डेमो दिया था उसमें फोर्स ने बॉडी का शेप चेंज कर दिया था। तो आपने तीन बातें बोलनी है, ध्यान से सुना। फोर्स, इंग्लिश में भी बताऊंगा, फोर्स एक ऐसा कार्य करता है जो रुकी हुई बॉडी को मोशन में ले आता है या लाने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट, फोर्स एक ऐसा कार्य करता है जो ऑलरेडी मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ले आता है या लाने की कोशिश करता है। तीसरी बात, फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो उस बॉडी की नेचुरल शेप को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। गॉट इट? इंग्लिश में फोर्स, धीरे धीरे बोलूंगा जो पेपर में लिखनी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज। फोर्स इज दैट एजेंट विच changes the state of body or tends to change the state of body. It can also change the shape of the body upon which it is applied or tends to change the shape of the body. या तो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट को चेंज करने का मतलब क्या है सर? रेस्ट से मोशन में ले आना, मोशन से रेस्ट में ले आना।
तो फोर्स एक ऐसा कार्य करता है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट, बॉडी की शेप को चेंज कर देता है जब अप्लाई करता है फोर्स, या चेंज करने की कोशिश करता है। जिन बच्चों को समझ आ गया कि ये फोर्स होता क्या है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बेटे अगर समझ आ गया तो जरूर हाथ खड़ा करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। अब टीचर एक और बात बताने लगा है, वो सुनो, कि अगर किसी बॉडी का मास m हो और उस बॉडी के ऊपर इतना एक्सेलरेशन लग रहा हो, कैपिटल ए, कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए, सॉरी, ए को बोला टीचर ने एक्सेलरेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से साइंटिस्टों ने बोला फोर्स को ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इस फार्मूले को मैं अगली शीट पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। गॉट इट? तो पहले ये देखो, इस केस में इसने कम फोर्स लगाया है और इस केस में इसने ज्यादा फोर्स लगाया, बस दैट्स द ऑल, राइट? तो हमने क्या देखा? शाबाश। सो हमने क्या देखा कि फोर्स दोनों ही केसेस में बॉडी की शेप को चेंज कर रहा है, राइट? सो यहां पर अब मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करता हूं कि, इसको हटाओ, नो कर दे कुछ, हटाओ इसको, ले, कर दिया काम। चलो आगे हट। लिसन बेटे अटेंटिवली, एवरीबॉडी विल लिसन। मैं अपने अपने बच्चों को मैथमेटिकली फोर्स कैसे कैलकुलेट करता हूँ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कार मूव कर रही है, ठीक है, और मैंने नोट करा, ध्यान से सुना, मैंने नोट करा उसने स्ट्रेट लाइन में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करा और इसको कवर करने में उसने टाइम ले लिया इतना टी। बच्चा कहता है सर एग्जांपल से बताओ। जैसे मैं बोल दूं ये कार 20 मीटर चल जाती है और टाइम लेती है 2 सेकंड, 2 सेकंड में 20 मीटर चल जाती है। ओके सर, तो 20 मीटर क्या है सर? ये स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट है। सर 2 सेकंड क्या है? जो उसने टाइम लिया। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये इस कार की वेलोसिटी बनेगी, क्योंकि मैं शुरुआती बात कर रहा हूं इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनना, इस कार के अंदर जो ड्राइवर है उसने एक्सेलरेटर दबाकर इंजन को जोर लगाने के लिए बोला। जैसे उसने इंजन को ज्यादा फोर्स लगा, ज्यादा ज्यादा तेज गति से चलने का ऑर्डर दिया, तो थोड़ी देर बाद यही कार बेटे थोड़ी देर बाद मैंने नोट करा कि वो 30 मीटर चल रही थी, 30 मीटर चल रही थी, और टाइम अभी भी वो 2 सेकंड ले रही थी, 2 सेकंड। तो एस डैश नया डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30, और टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी बेटे, फाइनल वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो हो गया बेटे 30/2, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, जबकि पहले कितना आया था? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
अब ये दोनों में चेंज इन वेलोसिटी आ गया। कोई बच्चा बोले सर चेंज इन वेलोसिटी आया कितना, मैं कहूंगा बेटे चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी। सर आपका मतलब 15 में से 10 माइनस कर दें, इस 15 में से ये वाला 10 माइनस कर दें, यस ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। सर अब क्या करना है, अब मैं उस ड्राइवर से पूछूंगा कि इस मोमेंट से लेकर इस मोमेंट तक जाने में तुम्हें वक्त कितना लग गया। यानी जब तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, उससे तुमने तुम्हारे इंजन की मदद से 15 मीटर पर सेकंड कर दिया, लेकिन यहां से यहां तक आने में टाइम ड्यूरेशन कितनी लग गई, टाइम ड्यूरेशन। वो कहता है मेरे को यहां से यहां तक आने में टाइम ड्यूरेशन लग गया 3 सेकेंड, डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन। तो ध्यान से सुनना, अब इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो। यानी कि बच्चा बोलेगा सर जो हमारा ऊपर आंसर आया ना 5, उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, बिल्कुल सही। तो सर ये क्या आएगा इसका आंसर, मैंने कहा खुद देखो भाई 1.66 ऐसे कुछ आएगा, आगे भी जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड पहले ही था, टाइम से फिर से डिवाइड कर दिया, सेकंड का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से सुन लेना, इस सारी चीज को हम साइंस की लैंग्वेज में एक्सरलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एक्सरलेशन। एक्सरलेशन वर्ड एक्सरलेट से लिया गया है। आपने देखा बाइक के अंदर एक्सरलेटर लगा होता है, कार में भी आपने देखा होगा जिन बच्चों को कार चलानी आती है, ABC, एक्सरलेटर, ब्रेक, क्लच। पहले वाला पैडल जो होता है कार में पैर से दबाते हैं तो वो एक्सरलेटर होता है, ठीक है। सो यहां से एक टर्म बनाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया कितने टाइम में, दैट इज नोन एज एक्सरलेशन। इसका डेफिनेशन क्या बनता है, रेट ऑफ, रेट, जब भी टाइम से कोई चीज डिवाइड हो तो रेट वर्ड जरूर लगाना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटे साइंस में ना दो चीजों से बहुत डिवाइड करते हैं, या तो टाइम से या लेंथ से। कभी भी साइंस के किसी भी चैप्टर में जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड हो तो रेट वर्ड लगाना है, लेकिन जब भी कोई चीज लेंथ से डिवाइड हो, लेंथ से, तो आपने ग्रेडियंट वर्ड लगाना है, ग्रेडियंट। लेकिन इस आर्टिकल में हमने ग्रेडियंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, ये तो मैंने एडिशनल नॉलेज बता दिया आपको। अब ध्यान से सुनना, अब सबसे खास बात है, सबसे खास बात, अगर इस कार का मास भी पता हो मेरे को, सर जैसे मैं कह दूं ये कार 150 किलो की है, ओके, तो इस कार के मास को इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। सर आपका मतलब है 150 किलो को ये 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कहा यस। तो सर ये क्या आएगा, मैंने कहा कटिंग करो। सर ये 50 से कट गया, 50 × 5, सर ये तो 250 आया, ये 250 है क्या, यही तो टीचर बोलना चाहता है कि इस इंजन के, इस कार के इंजन ने इसको तेज करने के लिए जो, अब सुनना ध्यान से, जो फोर्स लगाया, जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू आ गई। इसीलिए बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब इस कार के इंजन ने 250 न्यूटन फोर्स लगाया। आंसर इज यस, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। देखो कहां से लेकर आया हूं मैं आपको, पहले अपने बच्चों को इनिशियल वेलोसिटी समझाया, फिर क्या समझाया, फाइनल वेलोसिटी समझाया, या इतना हिस्सा देखो, ठीक है। फिर उसके अंदर बच्चों को चेंज इन वेलोसिटी समझाया, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। फिर टाइम को लेकर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समझाया, जिसको के एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स की टर्म समझाई। देखो सारे लूप देखो एक बार, जिन बच्चों को ये पता लग गया कि सर अब हमें आइडिया हो गया फोर्स कैसे निकलता है, सो प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड।
शाबाश। कसम है उस बच्चे को जिसको समझ आ गया और हाथ नहीं खड़ा करा, और उस बच्चे को भी कसम है जिसको नहीं समझ आया और उसने हाथ खड़ा कर दिया। जिसको नहीं समझ आया हाथ नीचे रखना। वेरी गुड, शाबाश। अपनी क्लास की तरफ मुड़ के देखो, आपको खुशी होगी। मुड़ के देखो। वेरी नाइस। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है। डाउन, डाउन, डाउन। और जबकि मेरे को बोला गया है कि नहीं सर, ये हमारा ब्रिलियंट से एक नंबर कम है। गलत। यही ब्रिलियंट बच्चे हैं। रोज, लोटस, सनफ्लावर, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है। मैं कह रहा हूं आपको, आज से यकीन रखना है, 26 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसा एक्सपीरियंस टीचर अपने बच्चों को कह रहा है ब्रिलियंट। आज के बाद कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना, ठीक है। जो भी तुम्हें कहेगा नहीं जी कमजोर बच्चे हैं, उसने मेरे जितना नहीं पढ़ाया होगा। शाबाश। आगे पढ़े एक चीज और। जो बच्चे सोचते हैं सर आगे भी सीखना चाहते हैं, रेज योर हैंड। जो कहते हैं सर आगे पढ़ना चाहते हैं, वेरी गुड। एक और चीज सीखते हैं। ये देखो बेटे, अब आगे, ये तो वही है, देखो उसने फोर्स लगाया, उसी का एग्जाम्पल है, राइट। और इसमें फोर्स लगाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और बाद में मोशन वाला कपड़ा एकदम से रेस्ट में आ गया, लेकिन जो उसमें मैल के कीटाणु हैं वो अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश, मोशन में रहने की कोशिश करते हैं। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो इस कपड़े से डिटैच हो जाते हैं, राइट। अब देखो एक और बात। अच्छा, एक चीज मैं और बतानी है आपको। ये जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था ना, ये सारा जो समझा के लाया हूं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वो सारा अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, इसको बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बोलते हैं। अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी सीख ही लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ देखो, ध्यान से सुनना ये वाला। लुक एयर, टीचर ने हेडिंग भी दिया, देखो थर्ड लॉ। अब गौर से देखो बेटे, ये बच्चा अपने चप्पू से पानी को पीछे को देख धकेल रहा है। तो जो चप्पू से फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं एक्शन। पैडल पुशिस द, वेट ए मिनट, पैडल पुशिस द वाटर बैकवर्ड। लुक हियर, इसको बोलते हैं एक्शन। लेकिन वाटर इस चप्पू प्लस मैन प्लस बोट की सिंगल यूनिट को फॉरवर्ड पुश कर देगा उतने ही फोर्स से। सो इसको बोलते हैं रिएक्शन। वाटर पुशिस द कैनोन फॉरवर्ड। तो लड़का प्लस बोट प्लस चप्पू तीनों मिलके फॉरवर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन। और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ध्यान से सुनो, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, इसलिए यहां माइनस लगता है। तो डेफिनेशन क्या बनी थर्ड लॉ की? एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये थर्ड लॉ की डेफिनेशन है। लेकिन फिर भी ये आपस में कैंसिल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए एक ही बॉडी पर लगना जरूरी होता है। यहां पर एक्शन तो लग रहा है वाटर के ऊपर और रिएक्शन लग रहा है किश्ती के ऊपर। तो दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, वाटर अलग है, किश्ती अलग है, इसलिए ये कैंसिल नहीं कर पाते, राइट। जितने बच्चों को न्यूटन थर्ड लॉ समझ आ गया, रेज योर हैंड। शाबाश। एक और देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ, ये भी देखो। इस लड़के ने एक्शन लगाया और बॉक्स और जमीन के बीच में अपोजिट जो रगड़ा लगता है, जो उसको मूव नहीं होने देता, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सो इस लड़के के द्वारा एक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगा, रेड एरो फ्रिक्शन बताता है, ब्लू एरो को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है यहाँ। जब तक ये इक्वल रहेगा, ये फिर, ये फिलहाल जब तक ये बॉक्स स्टेट में है, रेस्ट पर है, तो कोई भी चीज मोशन में नहीं आ रही। बॉक्स एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। और जब ये मोशन में भी आ जाता है तो एक्शन कम लगेगा, क्योंकि एक बार बॉडी मोशन में सेट हो जाए
तो धकेलने में कम फोर्स लगेगा, तो अप्लाइड फोर्स भी कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो जाएगा, लेकिन दोनों रहेंगे इक्वल एंड अपोजिट। रोज, सिर्फ रोज के, मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ रोज के बच्चों का अटेंशन बिगड़ गया पढ़ने में, बाकी दोनों सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लोटस एंड सनफ्लावर। और तुम देख लेना, रोज के बच्चों के मार्क्स कम आएंगे, मैं आज ही डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि वो सुन नहीं रहे, जबकि लोटस और सनफ्लावर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक चीज और देखो बेटे, ये हमारा टैंक है, उसने ऐसे शूट करा फॉरवर्ड सोल्जर ने, तो टैंक को बैकवर्ड फोर्स लगता है, लेकिन उस रिएक्शन को नलीफाई करने के लिए हमने इसको रिजिड बनाया होता है, जमीन नीचे चेन सिस्टम होता है, और इसको भारी भी बनाया होता है। ओके, इसी में देखो टैंक की फोटो, फिर भी टीचर ने बताया, देखो ये जो गोली लगा, बुलेट जाएगा आगे को, वो एक्शन, और बुलेट जाते जाते टैंक को बैकवर्ड पुश करेगा, रिएक्शन। पर उस रिएक्शन से हमारा ये जो टैंक है पीछे गिर ही ना जाए, इसलिए हमने इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करा होता है, फ्रिक्शन, राइट। और देखो, ये देखो उसने मजल को फायर कर दिया, और इधर जाके ये एक्शन हो गया इसके द्वारा, लेकिन टैंक वहीं पर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि टैंक और जमीन में फ्रिक्शनल ग्रिप बहुत ज्यादा है, हालांकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इसमें भी होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। ये सब कुछ मैंने यही लिख रखा है, ज्यादा है कम है सब। ये देखो वही फार्मूला आ गया बेटे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ वाला। अब ये जो ग्राफ हमारे रह गए हैं, इस ग्राफ को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जिन बच्चों को आज का लेक्चर पता लग गया, प्लीज रेज योर हैंड, वेव योर हैंड, वेव योर हैंड। थैंक यू। यस, पहले आइडेंटिटी रिवाइज करते हैं, आई थिंक क्लास में हो चुकी है सबकी, तो आइडेंटिटी रिवाइज करके देन हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी, रोज। रोल नंबर 3, अरमान सिंह। रोज रोल नंबर 3, अरमान सिंह। बलदेव सिंह। आखी क्यों बोल रहे हैं? यस, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ बेटे। A plus B whole square equal to A square ए स्क्वायर, B square साइन कौन सा लगेगा बीच में? ए स्क्वायर plus B square प्लस बी स्क्वायर plus two plus two A मिडल रो। क्या हो रहा है बेटे? प्लस 2ab, go to your seat. Yes, middle row, first bench boys, rows, stand up. नहीं, आप बैठ जाओ, पीछे वाला, पीछे वाला बैठ जाओ, आगे वाले खड़े हो जाओ बेटे। जो जो हाइट में छोटा है ना वो खड़ा रहे।
दूसरा बैठे। हाँ बता जरा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc 2bc प्लस ca 2ca 2ca। गुड। अच्छा ये भी बताओ जरा, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, किसी और ने नहीं बोलना, नहीं अगली आइडेंटिटी वो बताएगा। प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे फटाफट बोलो। माइनस सी स्क्वायर ठीक है, आगे कोई माइनस साइन दिख रहा है तुझे? तो फिर माइनस कैसे आ गया ये बेचारा? जिसके आगे माइनस साइन ही नहीं है उसके अपने आप माइनस कहाँ से ले आए आप? प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस 2ab गलत। माइनस स्टूडेंट्स माइनस 2ab प्लस 2bc फिर गलत। माइनस 2bc प्लस 2c प्लस 2c। सिट डाउन। बेटे जिस टर्म के आगे माइनस साइन है, ठीक है, जिस टर्म के आगे माइनस साइन है, जब वो मल्टीप्लिकेशन में आती है तब हमारे पास वो टर्म नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं है, सिर्फ बी के आगे माइनस साइन था तो ये टर्म पॉजिटिव रही, दोनों के आगे नेगेटिव साइन प्लस साइन था, ए एंड सी तो प्लस। जब हम स्केयर करते हैं तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है, माइनस बी स्केयर इज प्लस बी स्केयर, इसलिए ये तीनों टर्म्स तो हमारी पॉजिटिव ही रही। क्लियर मेरी बात? कि जब हम स्केयर करते हैं माइनस का तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस तो वो माइनस रहता है, दो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस होगा। अगर मान लो यही मैं चेंज करके इसको लिख दूं, माइनस सी, अगर मैं ये कर देती तो यहाँ पे मेरे पास सी था, ये टर्म मेरी नेगेटिव हो जाती। ठीक है, अब बी एंड सी दोनों नेगेटिव साइन में है, दोनों नेगेटिव साइन में है, जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास प्लस हो जाता अगर मेरे पास दो टर्म्स नेगेटिव होती। तो जो नेगेटिव टर्म अगर मल्टीप्लाई करते हो, दो टर्म मल्टीप्लाई करते हो दो नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव होती है। अगर सिंगल नेगेटिव टर्म है तो आंसर आपका नेगेटिव आता है, और जब हम स्केयर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसको हम ऐसे लर्न करते हैं, अदरवाइज ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। क्लियर? माइनस साइन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना और कैसे नहीं करना मैंने अभी ये बताया आपको। दो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर मेरी बात? एवरीवन क्लियर मेरी बात? चलो, ये था हमारे पास फॉर्मूला। एक नेक्स्ट मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, जैसा बेसिक सा फॉर्मूला हमने अभी किया था। ये प्लस था, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, हाँ जी, लोटस ए माइनस बी होल स्क्वायर, लोटस। हरगोपाल सिंह ए माइनस बी होल स्क्वायर। A square ए स्क्वायर plus B square प्लस बी स्क्वायर
plus 2ab minus 2ab minus 2ab. Good. A square minus 2ab plus b square. Go to your seat. Sunflower. Sunflower. Balraj Singh. A plus b whole cube. बलराज सिंह. हाँ जी बेटा, is equals to a दोबारा बोलो. a square क्यूब है तो क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा. a cube ए क्यूब plus प्लस b cube बी क्यूब plus प्लस 2ab cube क्यूब है 3ab 3ab cube आगे plus 3ab a प्लस बी. लर्न करो बेटे फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे ये चैप्टर कैसे होगा? ठीक है, फॉर्मूले डेली रिवाइज करने होते हैं. जब तक चैप्टर चल रहा है डेली फॉर्मूले घर से रिवाइज करके आओ, तभी फॉर्मूले लर्न होते हैं. ये नहीं है क्लास में टीचर कराएंगे तभी हम लर्न करेंगे, नहीं तो हम घर पे तो बुक्स ही नहीं खोलेंगे. ठीक है, ये फॉर्मूले ये नहीं है कि आपको सिर्फ 9th के लिए, ये आगे भी काम आने हैं. क्लियर मेरी बात? गो टू योर सीट. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी. क्लियर है बेटे? नेक्स्ट सनफ्लावर. मनदीप सिंह. मनदीप सिंह रोल नंबर 24. हाँ जी. a माइनस बी होल क्यूब. a माइनस बी. हाँ जी बोल. a क्यूब plus b cube प्लस नहीं आएगा, minus b माइनस बी क्यूब c cube plus c cube सी कहाँ है? सी कहाँ है? देखना जरा, मुझे तो सी दिखाई नहीं दे रहा. तुझे कहाँ से दिख गया? नेक्स्ट रोल नंबर 25. गो टू योर सीट. नेक्स्ट रोल नंबर सनफ्लावर. plus प्लस 3a cube 3a square गो टू योर सीट. नेक्स्ट रोल नंबर सनफ्लावर. नेक्स्ट रोल नंबर. अगर एब्सेंट है तो उससे नेक्स्ट रोल नंबर. 25 हो गया. 26 27 कौन आया है? सनफ्लावर. minus माइनस 3ab 3ab bracket a minus b a माइनस. bracket. गो टू योर सीट. जब हम सुन रही हूँ मैं फॉर्मूले, आइडेंटिटी सुन रही हूँ बेटे, जब मैंने आइडेंटिटी लिख ली जी, एक से एक को बुलाया मैंने, सबको तो नहीं बुलाया. उतनी देर में बाकी तो उसको देख सकते हो ना, जिसको याद नहीं. आपके पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आपने लिखे हुए हैं. जब मैं सुन रही हूँ तो आपको, आपके लिए ही सुन रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर सको. ये नहीं है कि एक को नहीं आता और हमने बुक्स खोल के देखना भी नहीं है कि आइडेंटिटी है क्या. क्या पता नेक्स्ट आपकी टर्न हो.
ठीक है, जब आइडेंटिटी बोर्ड पे लिख दी, नहीं आती तो जहां पे लिखी हुई है उसको पढ़ो, उसको लर्न करो, फिर आके बता दो। क्लियर मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर सुनूंगी आइडेंटिटीज, सारे पढ़ के आओगे, सबको आनी चाहिए आइडेंटिटीज आप इसकी। क्लियर है? लोटस, सहज, लोटस सहज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ जरा। ब्रैकेट हाँ जी, ए माइनस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट ए प्लस बी। गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर बेटा? ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखो जरा, हाँ जी, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, रोज, रोज, मंजोश, रोल नंबर 25, यस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अनम्यूट कर लो बेटे। Then change the identity. Finalizing that. अच्छा, करवाई नहीं है, गो टू योर सीट, राइट डाउन एवरीवन। मैं लिखवाती हूँ आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट, ब्रैकेट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख लो बेटे सारे, राइट डाउन। एक और आइडेंटिटी है इसी के साथ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आएगी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। क्लियर? ठीक है, ए क्यूब प्लस, सॉरी क्यूब लिख दिया मैं, स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर है। ठीक है, देखो याद कैसे करना है, यहाँ प्लस है तो फर्स्ट जो ब्रैकेट रहेगा वो प्लस का रहेगा, माइनस है तो पहला जो दोनों का ब्रैकेट रहेगा वो माइनस का रहेगा। क्लियर? फिर यहाँ पे प्लस आया तो सिर्फ ए बी टर्म नेगेटिव आएगी, बाकी दोनों पॉजिटिव। स्क्वायर के आगे का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक आइडेंटिटी को छोड़ के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उसमें हम स्केयरिंग नहीं करते, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस माइनस, या हम स्केयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो ये जब माइनस ए बी एक जगह पे, यहाँ पे प्लस, अगर बाहर वाले ब्रैकेट में माइनस है तो अंदर सारी टर्म्स के आगे प्लस का साइन रहता है। क्लियर मेरी बात? इसको याद कर लो, ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है आपकी। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक लिख ली सबने, है ना? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट से। क्वेश्चन नंबर 1, जो 2 लिखा है बेटे वो उसको काट दो, वो गलती से प्रिंट हो गया, एक्चुअली वो आगे बढ़ना चाहिए था। तो हम 1 के बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ये 1 के ही पार्ट है। तो 1 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, आइडेंटिटी बता दी है कौन सी यूज करनी है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट।
3/4s plus 8t whole square. 3/4s plus 8t whole square. लोटस, अभी भी लोटस से ही पूछा था ना मैंने, चलो कोई नहीं। लोटस, बलराज सिंह, लोटस, यस, बलराज सिंह। है क्या एब्सेंट है बेटे? मैम एब्सेंट है बलराज सिंह। ओके चलो आप ही करो फिर। 3s plus 8t होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, कौन सा यूज करना है, a plus b होल स्क्वायर। लगाओ जरा, a क्या है इसमें? 3/4s। गुड, 3/4s आपका a है, 8t हमारा b है। फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, लगा दो बेटे। 3/4s स्क्वायर 3/4s स्क्वायर प्लस 2 3/4s ब्रैकेट 80 80 प्लस 80 स्क्वायर। हाँ जी सॉल्व करो जरा। 9/16s स्क्वायर प्लस 4/12/4s 4 2 जा 8 तो 12 st, ठीक है, प्लस 64 t स्क्वायर। वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटा। 64 टी स्क्वायर, ठीक है, ये था आपके पास आंसर पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट, सनफ्लावर। समरीत कौर, समरीत लिखा ना, रोल नंबर 31, सनफ्लावर, रोल नंबर 31। हाँ जी, सेकंड पार्ट इसकी क्वेश्चन का, x + 1/2y बोलो बेटे। फॉर्मूला बताया गया है, जस्ट वैल्यू फिल करनी है। फर्स्ट हमारे पास ये a है, ये हमारे पास b है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, बता जरा। फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन में a की वैल्यू फिल कर। a क्या है मेरे पास? x तो क्या है? हाँ x² प्लस, फिर हमने क्या लिखना होता है, 2ab, 2 × a × b, तो 2 तो एज इट ही आ गया। x की 2 की a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू क्या है? x, 2 × x। b की वैल्यू क्या है? 1/2y, ये पूरा b है, प्लस अब हम क्या करते हैं, b², b की वैल्यू क्या है? 1/2y होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये तो एज इट ही आ गया, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, प्लस x × 1, क्या आ गया यहाँ पे?
x ओवर y प्लस, यहाँ बताओ जरा 2 स्क्वायर क्या होता है? 2 स्क्वायर बेटे 2 कहाँ गया? मैंने पूछा 2 स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कर रहे हैं हम। 2 स्क्वायर क्या होता है? 2 2 सा क्या होता है? 1/4 y स्क्वायर। ये आ गया आंसर। गो टू योर सीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 64 होल स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी। 64 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 64 होल स्क्वायर। हाँ जी, रोज रोज रोल नंबर 16। रोल नंबर 16। करो जरा इसको सॉल्व। 60 plus 4 whole square 60 प्लस 4 होल स्क्वायर। हाँ जी, which is equal to 60 square plus 2 प्लस 2 bracket 60 bracket 60 plus 4 plus b plus 4 square 60 square is 3600 plus 480 plus 60 कितना आ गया? 4096 4096। गुड, गो टू योर सीट। time and done. Yes, question number 3 B part. Lotus. Lotus. Roll number 4. Roll number 4. आयुष आ गया। आयुषिंदर सिंह ब्राउन। हाँ जी, 205 स्क्वायर। सेकंड पार्ट 205 स्क्वायर। बोलो जरा। 200 plus 5 200 प्लस 5 होल स्क्वायर। हाँ जी, A is equal to 200, A is equal to 200, B is equal to 5, B is equal to 5। 200 plus 5 whole square हाँ जी, is equal to 200 square plus 2 bracket 200 लिखा हुआ है क्या इस पे? no फिर इससे देख के क्यों बोल रहे हो? यहाँ तो नहीं लिखा, तो है फॉर्मूला याद नहीं तुझे? याद है ना तो फिर उसको छोड़ दो, बोर्ड पे देख के बोलो। 200 केयर लिख, अच्छा इंटू 200 कर दो। yes ma'am इंटू 200 into 5 इंटू 5
5 स्केयर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, करो जरा 200 का स्क्वायर। 4,000 40,000 प्लस 400 है? कैसे? 2 into 200 है मैम। अच्छा, 400 इंटू 5 भी कर दो, 20,000 2000 प्लस 25 20। करो जरा ऐड। 42,025 ठीक है, गो टू योर सीट। गुड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज कंप्लीटली। क्या है हमारे पास? 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। सनफ्लावर रूस, सनफ्लावर रोल नंबर 20 जसनूर सिंह। क्या है? जसनूर सिंह। फैक्टराइज करना है बेटे, फैक्टर्स बताओ जरा कैसे करें। पहले फैक्टराइज है। 4s स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है। देखो जो 4s है स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2s होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, इसको कैसे लिखें फिर हम? 5t होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये मेरे पास a दिखने लग गया, मुझे ये b दिखने लग गया, बीच में एक प्लस है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? बोलो जरा जोर से बोलो। सी कहाँ है? सी कहाँ है? होल स्क्वायर कहाँ है? ए स्क्वायर अलग पड़ा है, बी स्क्वायर अलग पड़ा है, होल तो है ही नहीं। होल तो मतलब ए प्लस बी पूरे पे आना चाहिए था, ब्रैकेट के बाहर सिंगल। जोर से बोल, थोड़ा सा जोर से, आवाज आनी चाहिए मुझे। हाँ, प्लस 2ab प्लस, अगर मैं a लगा दूं यहाँ पे 2s और b लगा दूं 5t, कितना बना? 2 into 5 10। अगर 2 और लगा दो तो बनता है 20। ये मेरे पास क्या है? ये a है, ये b है, तो कौन सा फॉर्मूला? a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस b होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लगी हुई है हमारे पास। a क्या है मेरे पास? a 2s, ओनली 2s। ये तो a स्क्वायर है, मींस a स्क्वायर है बेसिकली। तो a हमारे पास क्या है? 2s। b क्या है? 5t होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है तो इसको 2 बार लिख दो, तो इट मीन्स हमारे पास बन गया 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t। ये आपके पास आंसर आ गया।
क्लियर है बेटे? समझ आ गया? नेक्स्ट बी पार्ट भी सेम रहे, गो टू योर सीट। नेक्स्ट बी पार्ट सेम रहेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करने हैं, बी पार्ट अपने आप करना है। ओके ओके बेटे देन, ओके